Hello everyone, this is Renu Mangtani from the platform of Ankakshar Miracles, which is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research, which is recognized by IVAF, recognized by MSME from AAA, also it's a recognition of AAA from USA. And today we have Harsatveer Kaur ma'am as a guest on the platform of Ankakshar Miracles. She is amongst the 108 co-authors of this anthology book titled as My Marriage Bliss versus Curse and Seven Lee of Life. And both the books are available on Amazon and Flipkart. And this is Renu Mangtani. I am an IIBF certified digital banker, turned out as an internationally renowned author of many books, also a youth icon by Honorable Governor of Maharashtra. Talking about my husband, his name is Abhishek Chitransh. He's the founder and CEO of Ankakshar Miracles, also an expert master numerologist, and our Facebook page name is Ankakshar Miracles. Our YouTube channel is Ankakshar Miracles, and to know more about both of us, you can Google us and you can DM us on our Instagram IDs, which is truth underscore of underscore life 82 and Abhishek Chitransh. So, hello, ma'am, how are you doing today? Hello, ma'am. I'm fine, very good, and very excited to be here. Thank you. Thank you, and let's take the blessings of the God and begin this beautiful podcast. Karpura Garam संसार Karunaram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hridayarvinde Bhavam Bhavani Saitam Namami Bhavam Bhavani Saitam Namami. So let's take some short introduction about ma'am, and I'm going to start the screen sharing. Just let me know, ma'am, that are you able to see the screen? Are you able to see, ma'am? ma'am, yes. Yes. So, ma'am is a teacher, budding author, poet, traveler, foodie, and bookworm. एंड ये एक ब्यूटीफुल सा कोट हमने मैम के आर्टिकल से पुल आउट किया है विच इज मैरिज इज नॉट जस्ट द यूनियन ऑफ टू ह्यूमन बींग्स रादर इट इज द यूनियन ऑफ टू फैमिलीज ऑल्सो मैरिज इज अ ब्लिस ऑफ फैमिली टाइज एंड नाउ आई विल शेयर द ब्यूटीफुल बुक कवर्स विथ यू ऑल just give me 1 minute. Ma'am, are you able to see the book cover over here? My Marriage Bliss versus Curse. Ma'am, not yet, but I'm waiting for. Okay, just a minute. Just 1 minute. Is it visible now? Yes, it's visible. Yes. So this is the beautiful cover, My Marriage Bliss versus Curse, an anthology of 108 co-authors. And this is Seven Lee of Life, Anthology of Wisdom by 108 Visionaries. So moving on, ma'am, as the title of your article says, tips for healthy married life. So what's your say out to the listeners out here? Yes, ma'am. Thank you. Thank you for having me, ma'am. Ma'am, when it comes that healthy married life, it means I have written in my article also that first point is comes in my mind, that is understanding. Understanding, if there is understanding between husband and wife, they can solve every problem of life, not only big issues, not only small issues, but everything. There should be understanding between them. तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मैंने मेंशन भी किया फैमिली, इट इज दैट मैरिज इज नॉट यूनियन ऑफ टू पर्सन्स बट ऑल्सो अ फैमिली टायर. तो अकॉर्डिंग टू दिस फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती हैं. अगर आपकी फैमिलीज के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है, हस्बैंड की उसके इन लॉज के साथ या वाइफ की उसके इन लॉज के साथ आपस में अंडरस्टैंडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो उसकी छोटी सी स्टेज पे. बड़ी स्टेज आएगी नहीं मेरे ख्याल से. मेरा ओपिनियन ये है कि आपस में एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर करो. और द सेकंड पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन.
There should be strong communication between of them. That is my second tips, है ना? There should be honest conversations, wide conversations, or open conversation between them. ठीक है? And at last, I would like to say that love each other, trust each other, and also respect each other. आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, अंडरस्टैंड करो एक दूसरे को, बहुत सारी चीजें हैं जो सॉल्व हो जाती हैं। रिलेशनशिप को टाइम दो थोड़ा। हो सकता है आपको इस टाइम ये वाली कोई प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही है अपने पार्टनर की, हो सकता है थोड़ा टाइम देने के बाद आपको उसकी सारी बातें समझ आ जाएगी, उसकी नेचर समझ आ जाएगी। But that is my tips to everyone, as I have mentioned in my article also. That's great, ma'am. Thanks for these beautiful tips. और जैसे कि है कि अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और ये सारी Trust, चीजें, रिस्पेक्ट, ये सारी होनी ही चाहिए, तभी वो जो है रिश्ता आगे चल पाएगा एंड एक ब्यूटीफुल सा बॉन्ड कह सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो पाएगा। और कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन मैम, एक लड़की जब कहते हैं ना कि न्यू फैमिली में जब अपना अडॉप्ट करती है, न्यू फैमिली में आती है शादी करके, उसके लिए सारी चीजें न्यू हो जाती हैं। तो आप अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें शेयर करें, जैसे कि आपका कैसे रहा जब आपकी मैरिज हुई तो। yes ma'am, sure, I will tell you about myself. तो जब आप एक न्यू फैमिली में जाते हो, तो ऐसा था कि मेरी फैमिली थी चंडीगढ़ में, तो मेरे इन लॉज थे दैट वाज लिविंग इन नंगल, बट मेरे हस्बैंड ने फ्लैट ले रखा था नियर अबाउट चंडीगढ़, दैट इज इन खरड़, राइट? तो जाना तो हमें ऑलरेडी मतलब होम टाउन में ही था। शादी के बाद वहां गए, वहां सब बिल्कुल नया नया, बहुत ज्यादा नया, है ना? सारे लोग नए, डर भी लगता है, इन लॉज कैसे होंगे, सास ससुर कैसे होंगे, ननद कैसी होगी, है ना? बट दे मेक मी कंफर्टेबल। मेरी सिस्टर इन लॉ, शी इज वेरी गुड इन नेचर, उसने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया, मतलब फैमिली को थोड़ा गाइड किया मुझे कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, रिलैक्स करिए वो सो। 2-4 दिन नया नया तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ डर भी होता है। एक्चुअली मैम कस्टम्स वेरी डिफरेंट, उनके रिवाज है ना जो हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट थे, तो थोड़ा ये भी मुश्किल आ रही थी। जब हमारी शादी हुई तो उनके रिवाज हम हमारे रिवाज से मैच ही नहीं किए, तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी हो गई थी फैमिलीज में। लेकिन मेन बात वही आ गई ना, मेरी और मेरे हस्बैंड की जो आपस में ठीक थी, आई लव्ड हिम एंड आई एम लविंग हिम, तो हमारा ठीक रहा आपस में, है ना? तो कुछ लोग काफी फैमिलीज में ऐसे होते हैं, मैं अपनी फैमिली की बात नहीं करूंगी, देवरानी जेठानी चाचियां होती हैं, जिनको लगता है कि हम इतनी देर से यहाँ पे रह रहे हैं, ये कौन नया आ गया भाई हमारी फैमिली में हमारी जगह लेने, है ना? तो वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली को ओपनली बताने की बजाय ना, वो आपको टेस्ट करेंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो टेस्ट करेंगे कि ये जो कर रहा है तो ठीक कर रहा है, नहीं ठीक कर रहा तो उसकी बुराई करेंगे, रादर देन उसको सही लाइन पे लाने की बजाय उसकी बुराई करेंगे। ये नहीं होना चाहिए बस। दैट इज मुश्किल थिंग यही है कि जो आप कर रहे हो उसको या तो बताओ कि हमारी फैमिली में ऐसा हो रहा है तो आपको भी ऐसा ही करना है, या तो उसकी बुराइयां ना। एग्जैक्टली, फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब एक तो वो न्यू है, उसके लिए कस्टम्स भी न्यू है, सारी चीजें न्यू है। तो आप उसे सपोर्ट करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये सारी चीजें करके तो फिर मतलब इससे जो स्पॉइल ही होगा और कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट इफ चीज न्यू तो उसे सारी चीजें बताओ, कैसे आप लोग क्या कस्टम्स होते हैं, क्योंकि हर एक के लिए हर एक का मतलब रिलीजन तो कहते हैं कि मतलब भगवान के नाम चाहे अलग अलग हैं, लेकिन यस, उसकी जो पावर है वो तो एक ही है। तो इसी तरीके से जो भी मतलब जैसे कि आपने टिप्स अपने आर्टिकल का जो है टाइटल दिया है, तो जो भी आपके आर्टिकल को रीड करेगा, और ये जैसे आपने इतनी अच्छी बात बताई कस्टम्स को रिलेटेड और परेशान करने के रिलेटेड, तो ये नहीं करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। फैमिली सपोर्ट इज मस्ट। जहाँ सपोर्ट मिल जाता है तो वहां पे कोई इश्यूज नहीं आते हैं। दैट्स एक्चुअली फॉर द ग्रेट एंड द बेटर अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप चलता है उससे। रीति सो रिवाज के हस्बैंड वाइफ के अंदर ना काफी टाइम तक प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। आपका ये नहीं हुआ था, आपका वो नहीं हुआ था मैरिज में, क्या करना है इससे? लाइफ तो तुम दोनों ने बितानी है, ये है मेरा पॉइंट। exactly. हाँ जी। Moving on, ma'am, you have mentioned in your article, Seven Law of Life, that earning is good to live, but it is not everything to live. तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। यस मैम, मैम अर्निंग इज गुड टू लिव, but it's not everything to live, as I touched this topic in my article also, that while earning is
crucial for sustaining life and fulfilling our material needs, but it's not our sole ingredient for a fulfilling existence. ठीक है, जीवन में फाइनेंशियल सक्सेस के अलावा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जीवन में, ठीक है। एज माई वेरी क्लोज फ्रेंड मैम taught me that our satisfaction or our fulfillment can be comes from emotional emotional connections, personal growth, and also experience we do in our life. It's bring from them एक्सपीरियंस जो हम करते हैं, हमारे इमोशनल कनेक्शन कैसे हैं, हमारी पर्सनल ग्रोथ कैसी है, ठीक है, उससे हमको मतलब ज्यादा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। ओके, अर्निंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मीनिंगफुल रिलेशन, फिजिकल वेलबींग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग, राइट? तो when we focus on earning too much, we can neglect our health, we can neglect our time with our loved ones also, right? So life is balance, while earning is essential, but इसके ऊपर हमारी लाइफ में gratitude, love और peace, these things are very important in my life. मनी जो है दैट्स बेसिकली दैट शुड बी अ सेकेंडरी फैक्टर। प्राइमरी जो है, जैसे कि ट्रस्ट की बात करें तो जो ट्रस्ट बनाने में साल लग जाते हैं, बट इट जस्ट टेक अ सेकंड टू ब्रेक इट। तो ये सारी And चीजें, ब्लेसिंग्स, ये सारी मतलब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अर्निंग इज वेरी एसेंशियल, बट बहुत सारी चीजें हैं लाइफ के अंदर जो उनको भी आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी शांति के लिए, मन की शांति के लिए, लव के लिए, प्यार के लिए उसको रख सकते हो। दैट इज एग्जैक्टली। माय पॉइंट। थैंक यू सो मच मैम फॉर हाईलाइटिंग दिस ब्यूटीफुल पॉइंट्स। अब ये बताएं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट जैसे कि क्या हमें एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, और अगर रखते हैं तो हर्ट होता है क्या हमें एक्सपेक्टेशंस रखने से? यस मैम, एक्सपेक्टेशन तो रखनी चाहिए। और आपका क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टेशन हर्ट्स, यस इट हर्ट्स। एक्सपेक्टेशन क्या है? उम्मीदें हैं, हमारी उम्मीदें हैं। व्हेन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन, हमारे विचार हैं जो हम सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, हमारे अकॉर्डिंगली करेंगे, इन फ्यूचर में क्या होगा ये हमारे अकॉर्डिंगली होगा, ये हमारी उम्मीदें हैं उनसे। हम सोच लेते हैं, अपना माइंड बना लेते हैं कि यही होगा, यही होगा हमारे साथ, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे घर के मेंबर्स, हमारी फैमिली हमारे साथ ऐसा ही करेंगे, हम उनसे उम्मीद कर लेते हैं, राइट? उम्मीद कर ली, एक्सपेक्टेशन होगी, और करना तो सब भगवान ने है। अगर नहीं हो पाता है, आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाती, तो क्या होता है? इट हर्ट्स, हम दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, क्या करें? तो तो रुक जाएं या मूव ऑन करें, उस जैसा हुआ, क्या होना मैम, चाहिए आपके हिसाब से? किसी से उम्मीदें रखो ही मत, जो करना है अपने दम पर करो, जो है आपके अंदर है आप ही कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। कोई बीमार भी है, किसी से क्या उम्मीद करनी? सबसे ज्यादा वो क्या करेगा? सबसे ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछेगा ये वाली मेडिसिन लो, उस वाले डॉक्टर के पास जाओ, अपना ध्यान रखो। तो जस्ट करना बिलीव किस? इन गॉड एंड गो विद द फ्लो। यस। एग्जैक्टली। तो मैम ये बताइए कि जब आपको ये बुक्स मिली थी तो कैसी फीलिंग रही? बुक्स और आपकी पर्सनलाइज्ड गुडीज, आप बुक्स दिखाएं ऑडियंस को, कैसी फीलिंग रही आपकी? मैम बुक्स का तो पूछो ही मत। मैंने बुक्स, नहीं, हम तो पूछेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि कैसी रही फीलिंग। मैं ये देखो मेरी बुक्स एंड या मेरा आपकी फेस। एक्साइटमेंट बता रही है कि आप कितनी खुश थी उस टाइम? देखो, ये देखो मेरे गिफ्ट्स, है ना? तो बुक्स का मैं आपको बताती हूँ। मैं जब मैंने देखा दैट everybody is posting messages in a group that I have received my gift, I have received my gift, है ना? तो मैंने सोचा कि मेरा एक तो नहीं कहीं डिले हो गया, इट मे बी मिस्टेक इन एड्रेस ऑल्सो। तो आई कॉल टू अभिषेक सर, तो मैंने सर से बात की, सर ऐसे ऐसे हैं, क्या करें? तो सर ने बोला कि अपना जो है ट्रैक करो, स्टेटस चेक करो ट्रैक का। तो मैंने किया, उसमें आया कि आज शाम तक आ जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे लग रहा था कि एड्रेस का कोई मिस्टेक है ना? बट नहीं, ऐसा नहीं था। तो क्योंकि सर ने वो बोला कि एड्रेस का मिस्टेक नहीं था, वो एक्साइटमेंट था एक्चुअली। सबको मिल गया, मुझे भी देखना है उसमें क्या है, मेरे लिए क्या स्पेशल है, वो ये था। एक्चुअली मैम सर ने बताया कि पंजाब वालों के ना कईयों के पहुंच गए हैं पार्सल। तो मैंने कहा हाँ मेरे हाँ। नहीं पहुंचा, है ना? तो जब मैंने स्टेटस चेक किया तो उसमें आया कि शाम तक पहुंच जाएगा।
मुझे पता था कुरियर वाला आने वाला है, तो मैंने अपनी डॉटर को बोला कि वेन एवर ही विल कम देन रिकॉर्ड इट इन माई फोन। तो जैसे ही वो आया तो हमने फोन रिकॉर्ड किया, वीडियो रिकॉर्ड की। आई रिसीव द गिफ्ट एंड चीयर्स अप लाइक दिस, है ना, ऑन एंट्रेंस ऑफ माई गेट ना। तो देखो कि इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती कि मैंने इसको रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैंने आर्टिकल्स तो बहुत लिखे हैं, बट मैंने उनको छपा हुआ नहीं देखा, कहीं बुक में नहीं देखा, विद माई फोटोग्राफ ऑल्सो। ठीक है। तो आई वॉज वेरी आपको एक्साइटेड एट पता दैट। कैसे लगा मैम इस एंथोलॉजी के बारे में? कैसे आपको पता लगा और आपने सोचा फिर आपने ज्वाइन किया? हाँ जी मैम, मेरे जो मदर है ना, रसवीर कौर, तो वो अभिषेक सर के स्टूडेंट थे, न्यूमरोलॉजी उनसे काफी कुछ सीखा उन्होंने, काफी कुछ गेन किया। तो उन्होंने बताया कि सर बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करके बुक्स 108 ऑथर्स की होने जा रही हैं लॉन्च, तो अब लिखने जा रही हैं, मतलब वो, तो आप क्या करोगे, करना है कुछ? तो मम्मा ने बोला कि मैं तो नहीं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मेरी डॉटर है, यू कैन आस्क हर। तो मैंने उनसे उनका नंबर लिया, बात की। तो पहले मैंने सोचा कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो देन आई डिस्कस विद माई हस्बैंड ऑल्सो, एंड ही ऑलवेज सपोर्ट मी, ऑलवेज। तो सुबह से भी उनके 4 फोन आ गए हैं कि आज आपका इंटरव्यू हुआ तो कैसा रहेगा, आपकी तैयारी है, नहीं तो पोस्टपोन कर दो, हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। एक्चुअली ही इज इन अमृतसर टुडे, तो आई विल कम बैक आफ्टर दैट, वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द टॉपिक्स, एंड फिर आप कंटिन्यू कर लेना। मैं क्या, मैं नहीं, मैं आज ही करूंगी, आप सीधा मुझे अब इंटरव्यू में ही देखना। तो उन्होंने सपोर्ट किया कि लिखो, बट उन्होंने ही हेल्प मी वेरी मच इन टू राइट ऑल द थिंग्स इन आर्टिकल, एंड माई भाभी ऑल्सो हेल्प मी। तो सपोर्ट किया सबने, मैंने लिखा, तो दैट इज रिजल्ट, आई एम हैप्पी, आई एम सो हैप्पी टुडे टुडे। यू आर अ पब्लिश्ड को ऑथर, यस, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। यस, और आज भी आपने हिम्मत की, आपने इंटरव्यू दिया और आपको सबका सपोर्ट मिला। दैट्स रियली ग्रेट। फैमिली सपोर्ट होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके साथ हमेशा रहे। वी विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तब थैंक दिस वाज रेणु मंगतानी विद हर्षद वीर कौर। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए अंकाक्षर मिराकल्स के साथ। साथ जल्दी मिलेंगे अगली न्यू को ऑथर के साथ। थैंक यू सो मच मैम। यू मैम, थैंक यू, थैंक यू।